Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see 1 marks questions from the aldehyde ketone carboxylic acid which are asked in the various year of the board examinations. Okay. First question is from the naming. Write the name IUPAC name. Question is write the IUPAC name of the following compound. This is CS3CH, CS3CH, CS3CHO. Okay, and its name it is asked in 2014 in some part 14 1 2 3. Here will be 2-methyl 1 2 3 propane. Next question is write the name of following compound. Same question. Write the IUPAC name of the following compound. That is CS3 double bond O COCH CS3 then CS3. Now you have to write the name of this compound. Main parent group is ester. This is the parent. Okay, and this one is the 1 2. Okay, this one is the alkyl group. O is alkyl group. Okay, then what will be its name? Its name will be, if you write the with the help of common name, this one is the also isopropyl. Its name you can write by 2 ways. What is that? First is the isopropyl isopropyl ethanoate. Okay, and another way is that in bracket 1-methyl ethyl ethanoate. Okay, this is the name. Okay, note down. Next compound is
Next, with this one is also asked in the same year, 2014. In same paper, there were two names in different set. Okay. Now next question is next question is write the structure of of 3-hydroxybutanol. This question is asked in foreign 2013. Okay. The answer will be 3-hydroxybutanol. First you make the butanol, CH. This is the butanol. 3-hydroxy, OH. There is OH, 3-hydroxy. Now complete the valency by adding hydrogen. This is the structure of butanol. Okay. You can write this also like this: CH3, CH, OH, and CH2, C11OH. This is the way which can you also represent this compound. Now, same question in Delhi 13. Structure of the 3-methylbutanol. 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 In same way, you have to write the butanol first, then 3-methyl-CH3, then complete the structure. Okay. This is the 3-methylbutanol. Next, this one is asked in 2013 in Delhi. Next, structural formula is 4-chloropentane 2-one. 4-chloropentane 2-one. Pentane 2-one. Okay. CH3, CH, Cl, CH2. No. This is not the way. Pentane first. You have to make the pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Then 2-on. Here will be CH3. 4-chloro. 1, 2, 3, 4 chloro. Here will be CH2. Here will be H. Here will be CH3. This is the 4-chloropentane 2-on. Okay. Next one is name is para-methylbenzaldehyde. Para-methylbenzaldehyde. Benzaldehyde.
So first up, this question is asked in above in the 2014. This one was asked in 2014 on India and 2013 in Delhi, and this one was asked in also in same year on India in different set of paper and 2013 in Delhi. Then benzaldehyde, structure of benzaldehyde. The structure of benzaldehyde will be this. This is the structure of benzaldehyde CHO, and paramethyl is CH3. Paramethyl benzaldehyde. Okay. Now next question. The structural formula of this one is asked in 13 in foreign 4-methyl 3 in 2-on. Okay, 4-methyl pent 3-2-on. First of all, we make 1, 2, 3, 4, 5 pent. Here is 2-on. Okay, and 4-methyl 1, 2, 3, 4 methyl CH3 3-on. 3 in means double bond. Here is 2-on, 1, 2-on, 3 and 4 methyl. Now you have to complete the bond CH3 by adding hydrogen CH3. 4 bond is here completed, 4 bond is here completed, 4 bond is here completed, and H is here. This is the structure of 4-methyl 3 in 2-on. Okay. Now next this question has been asked in 2014 2013 in foreign. Next is 2-phenyl ethanoic acid. 2-phenyl ethanoic acid. Ethanoic acid. 3-phenyl ethanoic acid. Okay. तो क्या होगा यहाँ पे? पहले हम इथेनोइक एसिड बनाएंगे CH2C double bond OH. Is it clear? Then 1, 2-phenyl. This is the benzene ring which is known as phen. 2-phenyl ethanoic acid. It is asked in 2013 also in foreign 2013. Okay. Now naming of one more compound. Write the IUPAC name. IUPAC name of the compound. This question is asked in 2014 in Delhi.
and CH2 CH3CH NH2 CH 2CH2. This is the compound 1 2 3 4. Here will be 3 amino butanol. Okay, 3 amino butanol. Okay, this is the IPSC name of the compound given. Okay, I hope student you have complete different type, you have completed different type of the nomenclature in different way. You have seen the structure, then seen the named. Okay, now we will see some questions which are the theoretical type, reasoning type questions. Okay, what are these? First question: ethanol is soluble in water. Why? Ethanol is soluble in water. Why? Question asked in 2013 in All India 2013. कोई भी चीज़ अगर वाटर में सॉल्युबल है तो उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि हो सकता है वो कंपाउंड आयनिक हो और जिसके ऊपर अपोजिट चार्जेस हो तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ऐसा देखा जाता है कि आयनिक कंपाउंड नहीं है तो वो कंपाउंड पोलर ज़रूर होगा और इस तरह का पोलर कंपाउंड होगा जिसकी साइज छोटी होगी और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के एबल होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो उसके लिए हम जो है कि यहाँ पे ये कहेंगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कोई कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है तो उसके दो कारण हैं, एक तो आयनिक है और दूसरा अगर आयनिक नहीं है तो पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे हमारा रीजन हो जाएगा बस because it can form ethanol can form hydrogen bond with water. ओके, वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऐसे ही क्वेश्चंस और भी अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कंपेयर करना स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। इस चैप्टर में इसमें हम लोग को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कंपेयर करना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी देखेंगे, कार्बोक्सिलिक की देखेंगे। केवल कार्बोक्सिलिक ऐसा है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी हम देखेंगे। तो वो डिफरेंट वे में किस तरह से जो है कि एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। जैसे कि अगर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वीक एसिड है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होता है। इस बेस पे हमें यहाँ पे देखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि क्वेश्चन देखेंगे कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड।
following acids. Okay, acids, what is that? First is formic acid, second acetic acid, and third one is benzoic acid. Okay, 2014 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ये एसिड को स्ट्रेंथ के बेस पे कंपेयर करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम है और कौन सबसे कम है। तो पहले इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के लिखना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो HCOH है। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH3COOH है। और बेंजोइक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमें मिलता है COOH। अब कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन मोर एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है EWG and COOH, ERG, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से हमें डिसाइड करना है कि कौन एसिडिक होगा। अब रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, वो स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बॉन्ड इक्वल शेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये मजबूती से बन जाएगा, इसको निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो बॉन्ड इसके बीच ऑक्सीजन और इसके बीच है वो वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो है कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं इस केस में, तो यहाँ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण ये वाला वीक हो जाएगा देन दिस, ओके। अगर इस वाले में हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा जल्दी से रिलीज होगा, तो ये अगर हम ऑर्डर में लगाएंगे तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा, फिर उसके बाद COOH हो जाएगा और फिर हमारा CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर है। एक बार फिर से बता दें कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर से कम हो जाएगी, और अगर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर से कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को रिलीज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उस कंडीशन में कार्बन के ऊपर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उसके कारण जो है कि हाइड्रोजन स्ट्रांगली कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं भी अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो हमें बस दो चीज़ों को देखना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसके बेस पे हमें
कर लेंगे। इस तरह से हमें रटना नहीं पड़ेगा और हम आसानी से उस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे सेम क्वेश्चन के बेस पे हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Increasing order of acidic strength, order of acidic कैरेक्टर भी आ सकता है। ओके, कौन कौन सी एसिड है? फॉर्मिक एसिड HCOOH, नेक्स्ट है CF CH2COOH, नेक्स्ट है CF3COOH एंड लास्ट वन इज CCl3COOH। ठीक है, 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। और 2015 में क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ से एमिनो एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। अब यहाँ पे हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे विट्राइल ग्रुप लगा है, कहाँ पे विट्राइल ग्रुप नहीं लगा है। तो पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कोई विट्राइल ग्रुप नहीं लगा है, ना रिलीजिंग ग्रुप लगा है। इसमें रिलीजिंग ग्रुप के साथ एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे केवल विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और यहाँ पे केवल विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर देखा जाए तो ये मोस्ट सबसे ज़्यादा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और बहुत जल्दी से हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कम से ज़्यादा की हो। क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि हमें जब इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया होता है तो मैरो गलत लगा देते हैं। हमेशा याद रखना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो कम से ज़्यादा की हो जाएंगे, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, ज़्यादा से कम की हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, कहाँ नहीं लगा है। तो सबसे कम इन सब में अगर देखा जाए तो एक एक विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो ये सबसे कम हो जाएगा एसिडिक, ठीक है, लेस देन। अब हमें इन दोनों में तीनों में डिसाइड करना है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, ज़्यादा है, तो ये उससे भी कम हो गया, ये Cl CH2 COOH हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। इन दोनों में देखा जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पैदा करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला कम हो गया इससे, तो CCl3 COOH और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट जो बचा उसको हम लिख देंगे CF3COOH, ठीक है। तो हमें कहीं भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। एक चीज़ ये याद रखना है कि जहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेन कार्बन के ऊपर से कम होती जाएगी, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। और अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो डेंसिटी बढ़ेगी और क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब इसमें हमें लगता है कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेमिंग हमने देख लिया, इसके बाद हमारा है गिव द केमिकल टेस्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसमें बचता है वो है डिस्टिंग्विश टेस्ट का। तो एक हम देखेंगे, गिव द डिस्टिंग्विश टेस्ट
the following. ठीक है, इसमें एक हमारा है प्रोपेनल टू प्रोपेनॉल। फर्स्ट है प्रोपेनल और एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल का मतलब है CH3 CH2 CHO। ओके, CH3 CH2 CHO। और ये क्या है, CH3 CO CH3। ठीक है, CH3 CO CH3। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा है, डबल बॉन्ड के साथ O और H लगा है। और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 लगा है। तो सबसे बढ़िया टेस्ट करने का तरीका है टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर देगा, क्योंकि इसके पास ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन अगर कार्बोनिल ग्रुप के पास है तो टॉलेंस रिएजेंट को वो रिड्यूस कर लेगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हम यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट के साथ जो है कि यहाँ पे इट रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट, इट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट and give silver mirror। अब इसके पास तो एल्किल ग्रुप दोनों साइड में, इट डू नॉट गिव एनी टेस्ट, डोंट गिव एनी टेस्ट with tolerance reagent। ओके, तो इस तरह से अभी और भी सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।